صاحب امیر سے کل دیوان امیری میں قطر کے لیے 6 ملکوں کے نئے سفراء نے ملاقات کی اور انہیں اپنے اسناد سفارت پیش کیے۔ کل دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں کابینہ کا 7 روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا، اور قطر نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلس پر قابض اسرائیلی فوج کے دھاوے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز، اور اب پیش خدمت ہے بلیٹن ان ڈیٹیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے فرمانرواں خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبد العزیز ال سعود کو سعودی عرب کے یوم تاسیس کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبد العزیز آل ثانی نے بھی اس دن کی مناسبت سے خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبد العزیز آل سعود کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سینٹ لوشیا کے گورنر جنرل سیرل ایرول مرکیادس کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبد العزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے سینٹ لوشیا کے گورنر جنرل کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل دوحہ ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں جولری اور قیمتی گھڑیوں کی 19ویں دوحہ نمائش کا دورہ کیا۔ صاحب اسم امیر نے نمائش کے مختلف پویلینز کا معائنہ کیا اور زیورات، گھڑیوں اور قیمتی پتھروں کی تیاری میں قطری اور بڑی بین الاقوامی کمپنیوں کے جدید ترین ڈیزائنز کا مشاہدہ کیا۔ صاحب اسم امیر کو اس نمائش میں حصہ لینے والے قطری ڈیزائنرز کی کچھ تخلیقات کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی گئیں۔ کل دیوان امیری میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے قطر کے لیے 6 ملکوں کے نئے سفیروں نے ملاقات کی اور انہیں اپنے اسناد سفارت پیش کیے۔ ان سفراء میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر محمد اعجاز، آذربائیجان کے سفیر ماہر علییو، بنگلہ دیش کے سفیر محمد نزار الاسلام، فلپین کی سفیر للیبیتھ ویلاسکو، سلوویکیا کے سفیر روڈولف مکچالکا اور منگولیا کے سفیر سرگیلین پوریو شامل ہیں۔ صاحب اسم امیر نے ان سفراء کا خیر مقدم کیا، ان کے فرائض میں کامیابی اور قطر اور ان کے ممالک کے درمیان تعلقات میں مزید ترقی کی خواہش کا اظہار کیا۔ تمام سفراء نے اپنے ممالک کے سربراہان کی جانب سے خیر سگالی کے پیغامات دیے، جن میں صاحب اسم امیر کی صحت و تندرستی اور قطری عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ معزز سفراء نے دیوان امیری میں پہنچ کر ان کا باقاعدہ استقبال کیا گیا۔ کل دیوان امیری میں وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبد العزیز کی صدارت میں کابینہ کا ہفتہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے بعد وزیر مملکت برائے امور کابینہ نے ایک بیان میں بتایا کہ کابینہ نے رواں ماہ فروری کی 12 سے 15 تاریخ کے دوران صاحب السمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ترکی، اٹلی اور فرانس کے سرکاری دوروں کے نتائج کا خیر مقدم کیا۔ کابینہ نے اس بات کی توثیق کی کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان، اٹلی کے صدر سرگیو ماتاریلا اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ صاحب اسم امیر کے نتیجہ خیز مذاکرات قطر کے ساتھ مذکورہ ممالک کے تعلقات کی گہرائی اور مضبوطی کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس سے قبل کابینہ نے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بحث مکمل کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے۔ کابینہ کو شورا کونسل کی جانب سے منظور کردہ متعدد قانونی بلوں کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی، جن میں قطر میں رہائش پذیر غیر ملکی باشندوں کی غیر قانونی تجارتی، پیشہ ورانہ اور اقتصادی سرگرمیوں کو چھپانے کی روک تھام سے متعلق ایک مسودہ قانون بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبد العزیز آل ثانی نے کل سینٹرل میونسپل کونسل CMC کے انتخابات سے متعلق نگران کمیٹی اور ایگزیکٹو کمیٹیوں کی تشکیل اور ان کی شرائط کی وضاحت کرتے ہوئے سن 2023 کا فیصلہ نمبر 16 جاری کیا۔
इस फैसले के मुताबिक निगरान कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसकी सरबराही वजारत दाखिला में इलेक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मेजर जनरल माजिद इब्राहिम अल खुलैफी करेंगे। मेजर जनरल खुलैफी ने बताया कि सीएमसी के इंतखाबात का 7वां एडिशन मई और जून में होगा और इसका आगाज वोटर्स के इंदराज से होगा, जिसके बाद उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन और फिर उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई जाएगी जिसका अख्तिताम पोलिंग के दिन से पहले इलेक्टोरल साइलेंस के साथ होगा। कतर चैम्बर QC ने कल मुतादिद वजारतों बशमूल वजारत दाखिला, वजारत तिजारत व सनत और वजारत मेहनत और कतरी तरक्याती बैंक के साथ एक मुश्तरका इजलास की मेज़बानी की। इस मौके पर तकरीर करते हुए कतर चैम्बर के चेयरमैन शेख खलीफा अल थानी ने कहा कि इस इजलास से कौमी मईशत की बेहतरी के लिए सरकारी और निजी शोबों के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। शेख खलीफा अल थानी ने इस इजलास के इनेकाद के लिए कतर चैम्बर की दावत पर कतरी वजारतों के फौरी रद्द अमल की तारीफ की। कतर ने अरब इंसदाद दहशतगर्दी के माहिरीन के ग्रुप के 32वें इजलास में शिरकत की है जो कल मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में अरब लीग के सदर के दफ्तर के जनरल सेक्रेटेरिएट में शुरू हुआ। इस 2 रोज़ा इजलास में अरब ममालिक में दहशतगर्दी से निपटने के लिए अरब मुल्कों के वज़राए दाखिला की काउंसिल के अहलकार शिरकत कर रहे हैं। इजलास में दहशतगर्दी से निपटने के सिलसिले में साबिका इजलास में मंजूर की गई सिफारिशात पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा और दहशतगर्दी और मुनज़्ज़म जराइम से निपटने से मुतालिक बैनुल अक़वामी और इलाकाई तंजीमों के साथ ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कतर ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबलस पर काबिज इसराइली फौज के धावे की शदीद मजम्मत की है जिसके नतीजे में दर्जनों फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए। वजारत दाखिला की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि इसराइली हुकूमत की ये कार्रवाई बैनुल अक़वामी करारदादों की सरी खिलाफ वर्जी है और इसे फलस्तीनी अवाम के खिलाफ एक मुनज़्ज़म जुर्म करार दिया गया है। वजारत खारजा के बयान में इसराइल की बढ़ती हुई इन कार्रवाइयों के नतीजे में फलस्तीनी इलाकों की तशवीशनाक सूरत हाल से खबरदार करते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया गया है कि वो इसराइली हमलों को रोकने के लिए फौरी इक़दामात करें, फलस्तीनी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और इसराइल को मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में हौलनाक जराइम का जिम्मेदार ठहराए। वजारत खारजा के बयान में बरादर फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक की बहाली और सन 1967 की सरहदों के मुताबिक उनकी एक आज़ाद रियासत के क़याम के हुसूल के हवाले से जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी बैतुल मक़दस हो, कतर के मजबूत मौक़िफ़ का इआदा किया गया है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो FM 107 से सुन रहे हैं। उर्दन के फरमारवां शाह अब्दुल्ला दोम से कल कैनेडियन सेनेट के स्पीकर जॉर्ज फ्यूरे ने मुलाकात की जो इस वक्त उर्दन के दौरे पर हैं। मुलाकात में तमाम शोबों में दो तरफा ताउन के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के वसाइल के अलावा ताज़ा तरीन आलमी पेशरफ्त और ख़ित्ते में मुख्तलिफ बहरानों के सियासी हल तक पहुँचने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इंकशाफ किया है कि उनके चीन के हम मनसब शी जिनपिंग जल्द ही मॉस्को का दौरा करेंगे। इस दौरे के टाइम टेबल के बारे में कुछ नहीं बताया गया। कल क्रेमलिन में सदर पुतिन ने चीन के आला सिफारतकार वांग यी से मुलाकात की और इस तवक्को का इजहार किया कि चीनी सदर अनकरीब रूस का दौरा करेंगे। रूस के सदर ने कहा कि दोनों ममालिक दो तरफा मुलाकातों के जरिए अपने तमाम मुश्तरका मंसूबों पर अमल दरामद भी करेंगे जिससे आपस के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा आलमी सूरत हाल के इस्तेहकाम के लिए रूस और चीन के दरमियान ताउन इंतहाई ज़रूरी है। फ़लस्तीन के साबिक वज़ीर आज़म अहमद कुरे कल इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 86 साल थी और वो अक्टूबर सन 2003 से मार्च सन 2006 तक फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म रहे। कल शुमाली फ़लस्तीन में ज़लज़ला आया जिसे 4.2 रेक्टर स्केल पैमाने पर रिकॉर्ड किया गया। ज़लज़ले के झटके शुमाल मगरबी किनारे और गैलीली में भी महसूस किए गए। ज़लज़ले के नतीजे में किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली।
6 फरवरी की सुबह के वक्त तुर्की और शाम में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के बाद मशरक़ वस्ता का खित्ता आफ्टर शॉक से दो चार है। 7 फरवरी को नाबलुस से 13 किलोमीटर दूर शुमाली इलाके में 4.8 रेक्टर स्केल पर ज़लज़ला आया था। कल लिबनान के जनूबी साहली इलाके में भी 4.3 रेक्टर स्केल पर ज़लज़ला आया। ज़लज़ले से किसी किस्म का माली या जानी नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले मंगल के रोज भी यहां 2 ज़लज़ले आए थे जिन्हें 4 और 3.5 रेक्टर स्केल पर रिकॉर्ड किया गया था। रूस के दारुल हुकूमत मास्को के वस्ती इलाके में वाक़े एक होटल की कसीर अलमंजिला इमारत में आग लगने से 7 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो जाने की खबर मिली है। रूस के ज़राए अबलाग की रिपोर्ट के मुताबिक आग 16 मंजिला इमारत की 5वीं मंजिल पर लगी। हलाक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। 50 अफराद को सही सलामत इमारत से बाहर निकाल लिया गया और आग पर काबू पा लिया गया। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। कनाडा के फीलिक्स ऑगर ने कल ऑस्ट्रेलिया के जेसन कुबलर को 2-1, 4-6, 6-1 और 6-4 के तनासुब से शिकस्त देकर 2023 कतर एक्सॉन मोबिल ओपन टेनिस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले खिलाड़ी का एजाज हासिल कर लिया है। इस टूर्नामेंट के दूसरे राउंड के अहम तरीन मैचों में जर्मन खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़्वेरेव का मुकाबला बरतानवी खिलाड़ी एंडी मरे से होगा। डबल कैटेगरी में मुनक्किद एक और मैच में कतरी खिलाड़ी मुबारक शानान और ट्यूनिस के खिलाड़ी मलिक जजीरी पर मुश्तमिल अरब जोड़ी को डच रॉबिन हैस और मातवी मिडल कूप पर मुश्तमिल जोड़ी के हाथों 0-2, 4-6 और 2-6 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। उधर उर्दन के अब्दुल्ला शेलबे और को कल मरकजी राउंड मुकाबलों में 1-2, 6-3, 6-3 और 4-6 के तनासुब से जनूबी कोरिया के सून वो क्वान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। मर्दों और खवातीन के AVC बीच वॉलीबॉल कॉन्टिनेंटल कप चैंपियनशिप के तहत कतर की कौमी बीच वॉलीबॉल टीम और ओमान की टीम के दरमियान मैच आज खेला जाएगा। ये मैच अल गराफा स्पोर्ट्स क्लब के बीच कोर्ट्स में होगा। कतरी टीम ने गुज़िश्ता मंगल के रोज फलस्तीन की टीम के साथ खेले गए मैच में 2-1 की बर्तरी से इस टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। सऊदी अरब की हुकूमत ने पहली मर्तबा खवातीन खिलाड़ियों की टीम को इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF इवेंट में शिरकत के लिए रवाना कर दिया है। ये 4 रुकनी टीम इस हफ्ते श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में होने वाले बिली जीन किंग कप जूनियर्स के एशिया ओशियाना प्री क्वालिफाइंग इवेंट में शिरकत करेगी। बुलेटिन के इख्तिताम से पहले समाअत फरमाइए हेडलाइंस एक मर्तबा फिर। साहिब इस्मो अमीर ने सऊदी अरब के फरमारवां को उनके मुल्क के यौम तासीस और सेंट लूसिया के गवर्नर जनरल को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद के बरकी पैगामात इरसाल किए हैं। साहिब इस्मो अमीर से कल दीवान अमीरी में कतर के लिए 6 मुल्कों के नए सफरान ने मुलाकात की और उन्हें अपने इसनाद सफारत पेश किए। कल दीवान अमीरी में वजीर आज़म और वजीर दाखिला की सदारत में काबीना का हफ्त रोज़ा बाकायदा इजलास मुनक्किद हुआ। और कतर ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबलस पर काबिज इसराइली फौज के धावे की शदीद मजम्मत की है, जिसके नतीजे में दर्जनों फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए। इसके साथ ही आज का पहला बुलेटिन अब तक इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज एडिटर महमूद अहमद, स्टूडियो टेक्नीशियन मोहम्मद हसन, सोशल मीडिया टीम से इंतखाब आलम और मुझे हिशाम सैफ रहमान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख नूर उम्मल बवाकी 1 क्यूरियल से। और काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो देख रहा था। बहुत से लोगों का जॉब चले गई और टर्मिनेट कर दिए हैं, मुल्क भेज रहे हैं। तो ऐसे वीडियो देख के याद आया कि अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं लोगों को जो भी टर्मिनेट हो गए हैं, मुल्क जाने की फिराक में हैं। तो ऐसे लोग अगर कतर में होकर काम ढूंढ रहे हैं, काम चेंज करना चाहते हैं तो अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं। मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर हो सकता है आपको इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो हम लोग अपने कंपनी में लेंगे और चेंज भी कर लेंगे। और मुल्क जाने से अच्छा है इधर ही होके चेंज कर लीजिए। और किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो उनको, आपके दोस्त वगैरह, उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो
मुल्क जाने से अच्छा है अपने कंपनी में चेंज करके अपने यहाँ पर ही काम करें। तो ऐसे लोगों को मैं काम भी दे सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर टर्मिनेट हो गए हैं नो प्रॉब्लम, हम